Hello, Vacho. Today we'll start with a new chapter, and new chapter is periodic classification. Although you have studied this chapter in class 10th as well, but this would be the extension of what you have learned in class 10th. So, while starting with the periodic classification, I expect that most of the things are clear to you. Like when we talk about periodic classification, the very first thing that comes into mind is what is periodicity, what is periodic table. Periodicity is simply the repetition of properties after a fixed interval of time. So repetition of properties after a fixed interval of time is known as periodicity. And the systematic arrangement which was made or which was done in order to study the properties of different elements, because it was not possible to study the properties of each and every element individually and to a greater extent. So periodic table was the first systematic approach which was done so that the properties of different elements can be studied. Properties of different elements can be studied easily. Okay, so different scientists at different point of time they gave different theories about periodicity and different laws. So with the advent of time, most of those laws they got some kind of flaws in it, which leads to the discovery of new laws and new theories by the other scientists. But the first scientist who tried to explain the concept of periodicity was Daubner. एंड दिस डॉबने ट्राइड, जिसे हम लोग हिंदी में तिगड़ी भी कहते हैं, collection of three, इसको this law was given by Daubner, and he told simply that if all the elements, the basis of this classification was the increasing atomic mass. So what he done was he formed a group of three elements together all together, and he named them as triad. For example, he took lithium, sodium and potassium, these three elements, and he told that these three elements would form the basis of a triad. And what he observed was when the atomic mass of lithium and potassium was taken together and the average of the three elements, average of these two. For example, the atomic mass of lithium is 7 and the atomic mass of potassium is 39. When he tried to find out the average of these two elements, that was average, it comes out to be 7 plus 39 upon 2, which is equals to 46 by 2, that is 23. So this was the weight of atomic mass of the sodium atom. So he was able to form such three triads. Actually it was four triads, but in NCRT we usually study three triads: Linaka, chlorine, bromine, iodine, and Ficoni, that is iron, cobalt and nickel. One more is there, that is calcium, strontium and barium. So these were the triads which were given by the different triads which he tried to form during his discovery, his theory. But he was not able to. So the major reason for his failure was he was not even able to explain or classify all the elements in such triads. Was बाकी सब elements को in triads में all elements were not incorporated into these triads. तो ये इसका सबसे major drawback था. All elements were not forming such triads. ऐसे triads possibly नहीं बन पा रहे थे. So after this law, Daubner's triad, the next scientist who tried to give his classification was Newland. And Newland law of octave was again a very simple law. Newland law of octave. It simply says that octave हिंदी में जिसे हम लोग बोलते हैं सरगम को रिप्रेजेंट करती है, और सरगम हम जानते हैं जो सुर होते हैं वो सा से शुरू होते हैं और सा पे खत्म होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा. ठीक है. सो ऑल दीज आर दी सारे गामा पा धा नी सा. तो ये हम जानते हैं सारे के सारे सुर होते हैं. और ये चीज हमने देखा कि सा और सा फर्स्ट की प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, एट्थ की प्रॉपर्टी से मैच कर रही है. तो उसने भी यही कंसेप्ट फॉलो किया एंड ही टोल्ड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मैचेस विद दैट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी वाज मैचिंग विद द प्रॉपर्टी ऑफ eighth element. And this law was in this law he found that after every seven element the properties are repeating after seven elements. Okay,
So after every 7 elements, property was repeating, and this law itself, this theory was itself a very good theory, and but few limitations were also there in this theory, and one of the major limitation was that this law was applicable till calcium. It was applicable till calcium. Okay, that is this property of octave was followed till calcium. After that, elements were not showing this property, and the major drawback of this limit, this particular Newland law of octave was he declared that in nature that there are only 56 elements, that there are only 56 elements in the nature, and no more would be discovered in the coming future. 56 elements है and no more would be discovered. अब तक 56, एक मूवी आई थी ना, बिल्कुल वैसे ही इसने कहा कि no more would be discovered, no more would be discovered. ये इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन था. ये उसने बिल्कुल यही नहीं कहा कि आगे जाके और भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में उसने कोई भी जानकारी नहीं थी. ये न्यूलैंड का सबसे बड़ा लिमिटेशन था. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद जो लॉ हमने पढ़ना है तो वो था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद जो लॉ था दैट वाज मॉडर्न मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन हम स्टडी करेंगे. मेंडलीव वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट एक्चुअली जिसने थोड़ा सा इस क्लासिफिकेशन को सिस्टमैटिक करने की कोशिश की थी. और हम जानते हैं ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड पीरियड्स. he arranged the elements in the form of columns and groups. इसे basically हम तो कहते हैं. he arranged the elements in form of columns, that is groups, and rows, which were basically these rows were the horizontal arrangement which were later on given the name as periods, and these vertical columns which were given the name as groups, but in the later part of time. Okay, so he was the first scientist who actually tried to classify elements in such classification, and he gave some very good ideas. He gave some good suggestions, like first of all he left spaces for the elements not yet discovered. ये हम सभी जानते हैं कि he left spaces for elements not yet discovered, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे उन एलिमेंट्स के लिए उसने स्पेस छोड़ी थी. एंड ही गेव देम नेम एज एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, वेयर एका मींस द पेरेंट एटम. इट मींस व्हाटएवर एलिमेंट would be discovered on in the place of this एका boron, that particular element will show the exact property as that of boron. ताकि जो भी एलिमेंट इन कमिंग फ्यूचर जो भी डिस्कवर होगा, और एका बोरॉन जहाँ पे रखा हुआ, नाम हमने रखा है एक पहले से डिस्कवर हुए हुए उस एलिमेंट का, उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच होगी? बोरॉन से. इसलिए एका बोरॉन मतलब पेरेंट, एक प्रायर जिसे हम लोग बोल देते हैं. दूसरा उसने एक अच्छा काम किया, ही एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स. उसने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनते कैसे हैं, ही एक्सप्लेन देम. ही एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स. जैसे उसने कहा मान लीजिए मेटल है फर्स्ट ग्रुप का तो +1 वैलेंसी, मेटल है सेकंड ग्रुप का तो +2, 13th का है तो +3. नाउ इट इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन. वी ऑल नो दैट ऑक्सीजन हैज अ वैलेंसी -2. तो अगर इसके साथ कंबाइन करेगा तो इट वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ M2O, बिकॉज क्रिस क्रॉस मेथड होता है. जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो जो कंपाउंड बनेगा दैट वुड बी M2O2 और MO. जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारा? इट वुड बी M3O2. So this was the very simple concept given by Mendeleev, and it actually helped in the formation of oxides. Like oxides also, again we can find the formation of hydrides, क्योंकि हाइड्राइड्स में H की वैलेंसी -1 होती है. तो जब मेटल +1 ग्रुप का कंबाइन करेगा तो ऑब्वियसली जो कंपाउंड बनेगा दैट वुड बी M1H1. जब मेटल +2 का होगा कंबाइन करेगा H के साथ, द कंपाउंड फॉर्म विल बी M2H1, sorry M1H2. and when it is of 13th group, इसकी वैलेंसी +3 होगी तो उस समय the compound formed would be MH3. So in this way we can find the different kind of hydrides and oxides formed by an element. इसके बाद जो एक important बात हमने सीखनी है वो आप लोग भी सीख लीजिएगा.
मेंडलीव ने कुछ अच्छे काम जैसे ये किए थे, और कुछ उसकी एक लिमिटेशन भी थी उसके क्लासिफिकेशन में। पहला, he was not able to explain the position of isotopes। अब पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एक एनॉमली बन गई उसके लिए, एक अजीब सा बिहेवियर, एबनॉर्मलिटी जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बिकॉज अगर आपसे पूछूं आइसोटोप्स होते क्या है, तो आप कहेंगे सर आइसोटोप्स कुछ नहीं है, बेसिकली सेम एटॉमिक नंबर जिसका होता है, बट डिफरेंट मास नंबर। जिसका मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो 6C12, 6C13, 6C14, ये सारे के सारे आपके आइसोटोप्स हैं, क्योंकि इन सब में एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। अब कायदे से देखा जाए तो जितनी भी क्लासिफिकेशन थी उन सबका बेसिस जो था वो एटॉमिक मास था। तो अगर एटॉमिक मास क्लासिफिकेशन का बेसिस है, तो आप मुझे बताओ इसका मास कितना, 12, अगले वाले का मास कितना, 13, उसके नेक्स्ट का कितना मास, 14। तो ये तीनों तो आकर लड़ने लगेंगे कि भाई हमें तो आप अलग से सेपरेट जगह दो, क्योंकि हमारे मासेज अलग है। तो आपने कभी नोटिस किया है कि क्या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, पीरियोडिक टेबल में, जैसे हाइड्रोजन की बात करें या कार्बन की बात करें, तो क्या कार्बन को 3 जगह मिली है इस तरीके से? नो, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो इट मीन्स जो ये आइसोटोप वाला कंसेप्ट था, ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। जो लेटर ऑन जब नेक्स्ट लॉ आया हमारा, उसने एक्सप्लेन किया था। एक सबसे बड़ी गड़बड़ इसने नहीं करी, वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ, ये भी समझ लेना, पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। किसी ने बोला कि साहब एक बात बताइए, आप तो कह रहे हैं कि जो आपका बेसिस है वो एटॉमिक मास है, लेकिन कोबाल्ट का मास 58.9 है और निकल का एटॉमिक मास 58.7 है, तो कायदे से कोबाल्ट को बाद में और निकल को पहले आना चाहिए। उसने कहा आपने कहा तो सही, आपकी ऑब्जर्वेशन भी सही है, बट ऐसा मैं कर नहीं सकता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, जो एटॉमिक मासेस की वजह से अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूंगा, तो जो मैंने प्रॉपर्टी सेट करी है ना एलिमेंट्स की, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज गलत साबित हो जाएंगी और मेरा क्लासिफिकेशन फेल हो जाएगा। Although this was the limitation of his classification, but still he knows that I cannot swap the position of these two elements, because on swapping the entire systematic arrangement which I tried to form, that entire systematic arrangement will fail। तो ये हर एक साइंटिस्ट के पास ना, ये बच्चों एक हैबिट कह लो इसको, या फिर एक उनकी विजन होती है कि अपनी गलतियों को वो जानते हैं और गलतियों पे कहाँ पर वो काम कर सकते हैं, ये भी उनको आता है। तो थर्ड जो उसकी लिमिटेशन थी, ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आज तक भी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एनॉमलस है। और ये एनॉमलस क्यों है ये समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि हाइड्रोजन के पास ना एक ही इलेक्ट्रॉन है, इट जस्ट हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन। So if it has only one electron, so it can easily donate this particular electron, donate कर देगा एक electron। If it donates one electron, it would definitely behave as alkali metal, दे देगा, बन जाएगा महात्मा कि मैं तो संत आदमी हूँ, मैं क्या करूंगा इस इलेक्ट्रॉन का। तो उस केस में ये बन जाएगा आपका एल्कली मेटल, जो कि कौन सा ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप। और या फिर ये भी कर सकता है कि क्यों ना मैं किसी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लूं। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो अब ये कैसा बिहेव करेगा, हेलोजेंस की तरह बिहेव करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स की तरह ये बिहेव करना शुरू कर जाएगा। तो इट मीन्स एक एलिमेंट और जगह दो, बहुत ही नाइंसाफी है, कहाँ पर इसको प्लेस किया जाए। इसीलिए इस झगड़े से बचने के लिए क्या किया गया, हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप के ऊपर पीरियोडिक टेबल में प्लेस कर दिया गया कि भाई लड़ाई नहीं होगी, इसको यहाँ प्लेस कर दो ताकि कोई लड़ेगा भी नहीं इससे, और ये सेफली प्लेस्ड भी रहेगा। तो ये हाइड्रोजन की एनॉमली थी जो एक्सप्लेन वो नहीं कर पाया। सो दीज वर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद जो आता है हमारा, वो आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, है ना, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। लॉ एंड टेबल एंड लॉ दोनों समझ लेते हैं। देखो लॉ ने आते पहला एक चीज कहा कि जो जितना भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, एलिमेंट्स की, दे आर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बस ये कहने की देर थी, सारी की सारी जितनी भी एनॉमलीज थी मेंडलीव की, वो तुरंत दूर हो गई। कैसे, चेक कर लेते हैं। इसने एक बात और कही, इसने कहा
देयर आर टोटल 18 कॉलम्स, जिसको हम लोग आज के बाद ग्रुप्स कहेंगे। और उसने कहा 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको हम लोग पीरियड्स कहेंगे। he made a separate group for नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के लिए उसने एक सेपरेट ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब आ जाइए। इसकी अच्छाइयों में बहुत सारी अच्छाइयां थी। इसने जैसे ही बोला कि एटॉमिक नंबर जो है बेसिस है, तो हम जानते हैं जो आइसोटोप्स थे उनका तो बेसिस ही एटॉमिक नंबर था। जब एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर ही सेम है, तो पोजीशन अलग अलग कैसे मिल सकती है? जैसे 6C12, 6C13 और 6C14, सबका एटॉमिक नंबर क्या है भाई? एटॉमिक नंबर 6। So atomic number 6, so no separate position would be given to these elements or these isotopes, no separate position. Okay, so isotopes के बाद जो हम लड़ रहे थे अब तक कोबाल्ट और निकल की पोजीशन पे, उसने कहा कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है और निकल का एटॉमिक नंबर 28 एंड दे आर राइटली प्लेस्ड। तो ऐसा करते ही इसने क्लासिफिकेशन को इजी कर दिया। अब इसके बाद जो नया टॉपिक शुरू होता है, अभी तक तो 10th का ही आपने पढ़ा, इसकी भी एक ही लिमिटेशन है मॉडर्न क्लासिफिकेशन की, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है अभी तक। तो अगर हाइड्रोजन की पोजीशन एक्सप्लेन हो जाएगी, तो ये जो एनॉमलस बिहेवियर है इसका वो स्टडी करके कोई बता पाएगा कि कहाँ प्लेस करें, तो शायद ये एनॉमली खत्म हो पाएगी पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब आता है हमारा IUPAC नेम फॉर कंपाउंड्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 होता है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 का मतलब क्या होता है? कुछ बेसिक रूल्स याद करने हैं हमें। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 is nil, 1 is un, 2 is bi, 3 is tri, 4 is quad, 5 is pent, 6 is hex, 7 is hept, 8 is oct, 9 is non। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए आपके पास 100 है एटॉमिक नंबर, आपने पूछा, आपसे तो पूछा होता है इसको कैसे करेंगे IUPAC सिस्टम के हिसाब से, तो 1 is un, again 0, that is nil, again 0, that is nil, and em is what we add at the last. So the symbolic representation would be un ka u, nil ka n, nil ka n, it would be unn. Okay, so if I have to go with 105, it would be un, nil, pent, em. So the symbol would be un and p, un and p. अब मान लीजिए आपका 111 होता या 109 होता, चलिए, so it would be un, nil, n, em, un, nil, n, em, that is un. This is how we learn the atomic numbers of elements having atomic number greater than 100. So I believe that till this point everything is clear to you. कोई भी issue होगा तो I will be taking in the next class, next video. I'll be taking your doubts. Kindly post your doubts and issues in the comment section. Thank you so much. Take care. God bless you.